चलिए दोस्तों, एनसीईआरटी इंग्लिश 7th स्टैंडर्ड स्टोरी 3 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए देखते हैं। Here comes someone running, said the hermit. Let us see who it is. The king turned round and saw a man come running out of the forest. There was blood flowing from a wound on his leg. When he reached the king, he fainted on the ground, moaning feebly. The king washed the wound as best he could and bandaged it with his handkerchief and with a towel the hermit had. When at last the man felt better, the king brought fresh water and gave it to him. Meanwhile, the sun had set and it had become cool. So the king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. Lying on the bed, the man closed his eyes and was quiet. But the king was so tired with his walk and with the work he had done that he crouched down on the threshold and fell asleep. When he awoke in the morning, he found that the wounded stranger was lying on the bed and staring intently at him. "Forgive me," said the man in a weak voice when he saw that the king was awake and was looking at him. "I do not know you and have nothing to forgive you for," said the king. "You do not know me, but I know you. I am an enemy of yours who swore to revenge himself on you as you wrongly took away my property. I knew you had gone alone to see the hermit, and I planned to ambush you on your way back. But you did not return, so I came out to find you. Your bodyguard recognized me. As I ran away, I fell and I was wounded. I should have bled to death if you had not nursed me. I wished to harm you, and you have saved my life. Now, if I live, and if you wish it, I will serve you most faithfully. Forgive me." The king was happy to have made peace with his enemy. He not only forgave him, but said he would send his own physician to treat him and promised to restore his property. Then the king went out and looked around for the hermit. He wished once more to beg an answer to his questions before going away. The hermit was outside, sowing seeds in the beds that had been dug the day before. The king approached him and said, "For the last time, I pray you to answer my questions, wise man." "You have already been answered," said the hermit. "How answered? What do you mean?" asked the king. "Do you not see?" replied the hermit. "If you had not pitied my weakness yesterday and had not stayed back to dig those beds for me, you would have been attacked by that man on your way back. So the most important time was when you were digging the beds. I was the most important person, and to do me good was your most important business. Afterwards, when that man ran to us, the most important time was when you were attending to him. If you had not bound up his wounds, he would have died without having made peace with you. So he was the most important person, and what you did for him was your most important work. Remember, then, there is only one time that is right. It is the most important time, because it is the only time when we have any power. The most important person is the one with whom you are at a particular moment. No one knows whether you will ever meet anyone else in future. The most important thing to do is to do good, because for that purpose alone are we sent into this life. हिंदी में सुनिए,
यहाँ पे देखिए हर्मिट उसे बोल रहा है देखो वहाँ से कोई आ रहा है, पहले जाके उसकी मदद करो, फिर बाद में हम देखते हैं। तो किंग दूसरी तरफ देखता है और उसे एक आदमी जो जंगल में दौड़ता हुआ और जिसके पैरों में लदबद हुआ था ऐसा वाला दिखता है और वो आके वहाँ पे बेहोश हो जाता है। तो किंग उसे उठाता है, देखता है और वो उसको सबसे पहले उसके पैरों पे जहाँ चोट लगी है वहाँ पे पट्टी लगा देता है, पानी पिलाता है। और जो हर्मिट मतलब जो संत महात्मा है वो भी कुछ अपने पास जो दवाई वाले रहते हैं, जो कपड़े हैं वो सब देते हैं। उसके बाद में किंग उसे फ्रेश वाटर देता है। अब ये सब होने के बाद वो तो सो जाता है, लेकिन किंग जो है ये राजा हर्मिट के पास जो है वो आता है। हर्मिट बोलता है उसे अंदर सुलाओ, फिर ये सुलाने के लिए उसको वो आदमी को मस्त से लटा देते हैं, वो सो जाता है। किंग बहुत दिन भर काम करके थका हारा होता है और उसे भी आराम करने की बहुत ज़रूरत होती है, तो वो भी उसी कुटिया के पास वो भी वहाँ पे बैठ के सो जाता है। वैसे ही मॉर्निंग हो जाती है। सुबह होने के बाद वो जो स्ट्रेंजर जिसको ज़ख्म लगे थे वो आदमी अच्छे से उठ जाता है। उठने के बाद वो देखता है और फिर वो बहुत ही मतलब वीक हुआ होता है। तो वो किंग को बोलता है कि किंग आपको पता है मैं कौन हूँ और मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन किंग बोलता है मुझे पता ही नहीं तुमने मेरे साथ गलत क्या किया है, तो मैं तुम्हें माफ़ी क्यों दूँ। और ये बोलता है आपको पता नहीं है मैं आपका दुश्मन हूँ, मैं यहाँ पे आपका बदला लेने के लिए आया था। आपने मेरी प्रॉपर्टी गलत तरीके से ले ली है और मैंने जिसे पूछा था वो बोले कि हर्मिट के यहाँ किंग है, उसको जाके आपको ख़त्म करना है, इसलिए मैं आया। और जंगल में भागते भागते आपके सैनिकों ने मुझे देख लिया। मैं फिर उनसे पीछा छुड़ाने के लिए भाग रहा था, तब भी जंगल में पता नहीं कहाँ क्या चोट लग गई और मैं गिर गया और मैं बेहोश हो गया। अब मुझे लग रहा था कि मैं मर जाऊँगा, लेकिन आपने मेरी सेवा की है। अब मेरा ये अधिकार बनता है कि मैं मरते दम तक आपकी सेवा करूँ। अगर आपको चाहिए तो आप जो करना है मेरे साथ कर सकते हैं, लेकिन मैं अब इसके बाद में आपके साथ हमेशा लॉयल रहूँगा। तो किंग उसे गले लगा लेता है और बोलता है कि भले ही तुम मेरे किंग हो, लेकिन आज तुमने माफ़ी मांगी है तो मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। और फिर वो उनके आदमियों को बोलता है कि इसको और अच्छे दवाखाने में लेके जाइए, इसको ट्रीटमेंट कीजिए। किंग बाद में फिर से वो हर्मिट के पास, संत के महात्मा लोगों के पास आ जाता है और संत को उसके जो 3 क्वेश्चन थे उसकी अभी तक उसको आंसर्स नहीं मिले हैं, तो वो उनके पास आके उनको पूछता है। तो हर्मिट जहाँ पे उसने ज़मीन खोद के रखी थी उसमें उसने सिर डाल रहा है वो महात्मा। तो महात्मा के पास किंग जैसे जाता है तो बोलता है कि देखो अब मैं और नहीं, लेकिन मेरे क्वेश्चन के आंसर तो दे दीजिए, आप बहुत ये है। तब हर्मिट हंस के बोलता है अभी तक तुम्हें आंसर मिले ही नहीं है। तो वो बोलता है चलो ठीक है, नहीं मिले हैं तो बता ही दीजिए, इसका मतलब क्या है। तो हर्मिट बोलते हैं अरे भाई जो आज यस्टरडे मतलब तुमने कल जो किया था, जो वीकनेसेस थी और जो तुमने तुम्हारे सबसे पहला काम किया था, तो तुमने ये किया कि जो आदमी है उसको सबसे पहले ये किया, जो ज़मीन है, ज़मीन को तुमने खोदने के बाद तुम थक गए थे। थकने के बाद भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ तुम्हारे लिए बिजनेस क्या था कि जो ज़ख्मी आदमी था उस ज़ख्मी आदमी को अच्छे से उसकी देखभाल करे और उसकी सेवा करने के बाद उसको अच्छे से मतलब ये करे, ये वाला। तो ये एक तरीके से ये होता है ना, ज़मीन को आपने खोद दिया है, अब वहाँ पे सीड आएंगे, उग जाएगा, तो तुमने जो काम किया है वो फल देने वाला है। जो इनिमी था, दुश्मन था, अगर कुछ नहीं करते थे तो दुश्मन तुम्हें मार डालता था, ऐसे भी होने वाला था। तो यही तुम्हारा सबसे पहले क्या है, एक सही तरीका होता है कि अपना टाइम जो है वो सेव करने का। तो यही तुम्हारा पहले क्वेश्चन का आंसर है कि जो तुम्हारी पावर होती है, व्हेन यू आर यूजिंग योर पावर दैट अ टाइम वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम और पर्सन फॉर यू। ऐसे वो महात्मा उसे बोल देते हैं। और फिर वो बोलते हैं पता नहीं हम बाद में कब मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, फ्यूचर की सारी बातें होती है। तो वो बोलते हैं कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, आज की क्या ज़रूरत है, क्या है। तो वो बोलते हैं कि हमारे सामने जो दिखता है वही हमारा सबसे परफेक्ट टाइम होता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ये स्टोरी कवर करने की कोशिश की है। आपने पूरी वीडियो देख ली है, धन्यवाद। और ऐसे देखते ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।